الرحمن الرحیم، میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں وکیلستان۔ وکیلستان.com کی طرف سے ویڈیو پیش خدمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع قانون میں ریمانڈ کیا ہے اور ریمانڈ کی کون کون سی اقسام ہیں۔ آپ کے علم میں ہے جب بھی کوئی فوجداری مقدمہ قائم کیا جاتا ہے تو فوجداری مقدمے کے قائم ہونے کے بعد، اس کے رجسٹر ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ مقدمے کی تفتیش کا شروع ہو جاتا ہے۔ جب مقدمے کی تفتیش شروع ہوتی ہے تو اس وقت ایک پروسیس جو لاء میں بیان کیا گیا ہے وہ ریمانڈ کا ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ریمانڈ کی کتنی قسمیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، ریمانڈ کی 3 قسمیں ہیں: فزیکل ریمانڈ، جوڈیشل ریمانڈ اور ٹرانزٹ ریمانڈ۔ جو فزیکل اور جوڈیشل ریمانڈ ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ عمومی طور پہ فزیکل ریمانڈ کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ فزیکل ریمانڈ ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور پولیس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ملزم کو جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ بنا سکتی ہے۔ عمومی طور پر ریمانڈ کا یہی مفہوم لیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے قانون کے اندر جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے۔ ضابطۂ فوجداری 151 کے تحت FIR کے اندراج کے بعد کرمنل پروسیجر کوڈ کی شق 61 کے تحت تفتیشی افسر یعنی IO انویسٹیگیشن افسر کی ذمہ داری ہے کہ ملزم کو 24 گھنٹے کے اندر اندر متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے۔ ان 24 گھنٹے کے اندر ملزم سے تفتیش مکمل نہ ہوئی ہو تو یعنی انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے مجسٹریٹ کو وجوہات بتائے گا کہ تفتیش اور جرم سے متعلق ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے ملزم کا بھی پولیس حراست میں رہنا ضروری ہے۔ عدالت جرم کی نوعیت وغیرہ دیکھتے ہوئے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 167 کے تحت ملزم کو کچھ دن کے لیے پولیس کی حراست میں دے دے گی۔ اسے فزیکل ریمانڈ کہتے ہیں۔ اس دوران ملزم سے شہادت کلیکٹ کی جاتی ہے اس کے جرم سے متعلق۔ کس قسم کی شہادت کلیکٹ کی جاتی ہے؟ اس میں ملزم کا سب سے پہلے بیان لکھا جاتا ہے کہ اس جرم سے متعلق اس کا نقطۂ نظر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا اس جرم سے وہ انکار کرتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ دیگر ملزمان ہیں تو وہ ان ملزمان کے نام بھی لکھواتا ہے۔ اگر کہیں پر کسی قسم کی کوشش ہوتی ہے تو ان سازش کرنے والے عناصر کو بھی وہ پولیس کے روبرو بیان کرتا ہے۔ اسی اگر پولیس تفتیش پر وہ ملزم جسمانی ریمانڈ پر ہو تو پھر برآمدگیاں وغیرہ، یعنی اگر ایک ملزم قتل کا ملزم ہے، اسے پستول برآمد کرنا ہے، اسے کلاشن کو برآمد کرنا ہے، یا جس قسم کا بھی آلہ ضرب ہے، جب اسے برآمد کیا جائے گا تو ریکوری کا جو پروسیس ہے وہ بھی فزیکل ریمانڈ کے دوران عموماً کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ ریمانڈ کے دوران اگر کوئی چیز ملزم سے برآمد کی کروائی جاتی ہے تو اس میں پھر فرد برآمدگی وہ علیحدہ سے ترتیب دی جاتی ہے، جس میں گواہان کے دستخط وغیرہ بھی کروائے جاتے ہیں کہ جناب ان گواہان کی موجودگی میں ملزم نے فلاں جگہ سے پسٹل برآمد کرایا، کلاشنکوف برآمد کروائی، سوٹے برآمد کروائے۔ تو اس کے لیے ایک علیحدہ جو ہے وہ اصول و قوانین ہوتے ہیں کہ پھر اس برآمدگی کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے، لیکن یہ جو فزیکل ریمانڈ میں ہی کیا جاتا ہے۔ فزیکل ریمانڈ کے بعد جو ہے وہ کتنے دن کا ہوگا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ فزیکل ریمانڈ ہے، قانون کے مطابق مجسٹریٹ ملزم کو زیادہ سے زیادہ 15 دن کے ریمانڈ کے حوالے سکتا ہے۔ تاہم غیر معمولی نوعیت کے کیسوں میں جسمانی ریمانڈ 15 دن سے بھی زیادہ دیا جا سکتا ہے، تاہم ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے۔ لیکن مجسٹریٹ ایک دفعہ پیشی پر 15 دن سے زیادہ کا جسمانی ریمانڈ نہیں دے سکتا۔ نیب قانون میں ملزم کو 3 مہینے یعنی 90 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ پر نیب افسران کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جسمانی ریمانڈ سے متعلق ایک غلط فہمی میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ پولیس جرم قبول کروانے کے لیے ملزم پر تشدد وغیرہ کر سکتی ہے،
तो इस गलत फहमी को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर कोई पुलिस एहलकार किसी मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाता है तो पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। उस मुकदमा दर्ज करवाने से पहले मुल्जिम के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दी जा सकती है कि इस मुल्जिम को पुलिस ने इस अंदाज में तशद्दुद किया कि उसके जिस्म पर जो है ज़रबात आ चुकी हैं, निशाने नीलगू पड़ चुके हैं, या किसी किस्म के भी तशद्दुद के अलामात अगर उसके जिस्म पर मौजूद हों, उसके जिस्म पर कहीं से खून आ रहा हो, उसके कपड़ों पर कहीं खून लगा हुआ हो, तो ऐसी तमाम सूरतों में जो है मुल्जिम का तिब्बी मुआयना करवाने के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। और फिर अगर ये बात साबित हो जाए कि पुलिस एहलकार ने, तफ्तीशी ने उस मुल्जिम पर जिस्मानी तशद्दुद किया है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सकती है। जिस्मानी रिमांड का एक ही मकसद है, वो है शहादत कलेक्ट करना, इससे अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। और अगर मुल्जिम खातून है तो जुर्म कत्ल या डकैती नहीं है तो आईओ को इस मुल्जिमा को, उस खातून मुल्जिमा को जो है वो आईओ के हवाले नहीं किया जाएगा। ज़ाब्ता फौजदारी की शिक 167 पंज 167(5) के तहत वो उससे जेल में ही तफ्तीश करेगा। इस मौका पर जेल अफसर और किसी खातून पुलिस एहलकार का भी पास मौजूद होना ज़रूरी होता है। अब हम बढ़ते हैं जुडिशल रिमांड की तरफ कि जुडिशल रिमांड क्या है। मुल्जिम की गिरफ्तारी के बाद ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 173 के तहत आईओ को 14 दिन, जिसमें 3 मजीद दिन शामिल किए जा सकते हैं, यानी 17 दिन, अदालत के सामने चालान मुकम्मल या नामुकम्मल पेश करना होता है। चालान में केस की तफसीलात, मुल्जिम से तफ्तीश की सूरत में जो सबूत वगैरह इकट्ठे हुए हैं उनकी तफसीलात दर्ज होती है। चालान पेश होने पर अदालत फाइल देखने के बाद अगर ये समझती है कि मुल्जिम ने कोई जुर्म नहीं किया तो उसे मुकदमे से डिस्चार्ज कर देती है। और ये इख्तियार इलाका मजिस्ट्रेट को 169 CRPC के तहत होता है। अगर अदालत ये महसूस करे कि मुल्जिम के खिलाफ किसी किस्म की कोई शहादत मौजूद नहीं है, डेफिशिएंट ऑफ एविडेंस का केस है, तो फिर अदालत जो है वो मुल्जिम को डिस्चार्ज कर सकती है। ये अदालत का इख्तियार है कि वो फाइल को मुलाहिजा करने के बाद, उन तमाम सबूतों को मुलाहिजा करने के बाद अगर ये समझे कि मुल्जिम के खिलाफ किसी किस्म की कोई शहादत सफ़ा मिसल पर नहीं आ सकी है, मौजूद नहीं है, तफ्तीशी जिस्मानी रिमांड हासिल करने के बावजूद किसी किस्म के रिकॉर्ड हासिल करने में नाकाम रहा है, सबूत इकट्ठे करने में नाकाम रहा है, तो अदालत को ये इख्तियार है कि वो 169 के तहत मुल्जिम को जो है डिस्चार्ज कर सकती है। उसके बाद अगर मुल्जिम के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हों तो ट्रायल का बाकायदा आगाज किया जाता है। इस दौरान मुल्जिम को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 344 के तहत पुलिस की हिरासत से लेकर जेल में भेज दिया जाता है। तो इसके लिए कौन सा सेक्शन इस्तेमाल होता है? सेक्शन 344 CRPC के जरिए मुल्जिम को जेल भिजवा दिया जाता है, पुलिस कस्टडी से लेकर उसको जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। तो इसे कहते हैं, आम जुबान में, वकला की लैंग्वेज में इसे कहते हैं कि मुल्जिम को जुडिशल कर दिया गया है, यानी ये जुडिशल रिमांड होता है। और इस दौरान मुल्जिम को जेल भेजने से पहले भी उसका तिब्बी मुआयना करवाना ज़रूरी होता है कि मुल्जिम पर किसी किस्म का जिस्मानी तशद्दुद मौजूद नहीं है। अगर जेल हुकाम मुल्जिम पर किसी किस्म का तशद्दुद करते हैं तो जेल हुकाम के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अदालत में केस चलने के दौरान मुल्जिम जितना अरसा जेल में रहेगा उसे जुडिशल रिमांड कहा जाता है। और याद रखिएगा कि ये जुडिशल रिमांड के बाद जब मुल्जिम को जुडिशल कर दिया जाता है, जुडिशल रिमांड पर भेजा जाता है, तो बेल दायर की जा सकती है। इससे पहले अगर मुल्जिम जिस्मानी रिमांड पर हो तो बेल दायर नहीं हो सकती। बेल उस वक्त दायर हो सकती है
जब मुलजिम को जुडिशल कर दिया जाएगा, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाएगा। अब हम आते हैं ट्रांजिट रिमांड की तरफ, या हम इसे सफरी रिमांड भी कहते हैं। ये ट्रांजिट रिमांड क्या है? मुलजिम जुर्म करके किसी दूसरे शहर फरार हो जाता है, यानी अगर जुर्म लाहौर में किया है तो वो पेशावर भाग जाता है या कराची भाग जाता है। अगर मुलजिम को पुलिस इस दौरान दूसरे शहर में गिरफ्तार कर लेती है, या उस मुतलका पुलिस मुलजिम की निशानदेही पर या मुलजिम की पॉइंटेशन पर वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती है, तो फिर मुलजिम को सफर के लिए जब मुतलका अदालत में पेश किया जाएगा तो अदालत से एक इजाजतनामा लिया जाएगा। वो होगा ट्रांजिट रिमांड के मुलजिम को सफर पर पेश किया जा रहा है। आपके इल्म में है कि मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना जरूरी होता है, और लेकिन आईने पाकिस्तान की आर्टिकल 10 के मुताबिक और फिर हमारे जो CRPC ज़ाब्ता फौजदारी के कानून के मुताबिक जो है, उस सफरी जितना टाइम होगा जो सफर के दौरान वो सर्फ होगा, वो उस 24 घंटों से मिनहा कर दिया जाएगा। ताहम सफर इतना ज्यादा है कि 24 घंटे के अंदर वापस पहुंचना मुमकिन नहीं, तो ऐसी सूरत में पुलिस ने मुलजिम को जिस इलाके से गिरफ्तार किया उसी इलाके के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। उसको वहां पर पेश करेगी, और पेश करने के बाद गिरफ्तारी उसके नोटिस में लाएगी और उससे मुलजिम का सफरी रिमांड लेगी और मुलजिम को अपने इलाके में वापस पहुंचकर मुतल्लिका इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। तो ये सफरी रिमांड जो है होता है कि जहां मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है उस इलाका मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश किया जाएगा और तमाम तर वजूहात उसको बताई जाएंगी, उसके इल्म में लाया जाएगा, वो ट्रांजिट रिमांड देगा। ट्रांजिट रिमांड देने के बाद फिर वापस जहां पर मुकदमा दर्ज है कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में मुलजिम को पेश किया जाएगा। तो इस दौरान जितना सफर होगा, सफर का टाइम जो है वो उन 24 घंटों से मिनहा कर दिया जाएगा। तो ये है ट्रांजिट रिमांड। उम्मीद है आज का मौजू आपको बहुत पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट www.wakilistan.com पर जाएंगे। वहाँ पर आपको तमाम मौज़ूआत कानून से मुतल्लिक ड्राफ्टिंग भी मिलेगी, वहाँ पर आपको साइटेशंस भी मिलेंगी, ताज़ा तरीन जजमेंट्स भी मिलेंगी। विजिट कीजिए www.wakilistan.com।